السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک ایسے وقت جب ملک زائد از 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد پیر سے ان لاک 1 کی تیاری کر رہا ہے، ملک میں کووڈ-19 کے معاملات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے اور ہر روز ایک نیا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10,600 سے زیادہ کیسز پائے گئے ہیں اور 334 اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق ملک میں اب تک 2,36,000 سے زائد مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 6,649 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے اعداد و شمار پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ورلڈومیٹر کے مطابق ہندوستان نے کووڈ-19 کے کیسوں کے معاملے میں اٹلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور چھٹا بری طرح متاثرہ ملک بن گیا ہے۔ اب صرف امریکہ، برازیل، روس، اسپین اور برطانیہ ہندوستان سے آگے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب ہندوستان مختلف شعبوں کو کھولنے کی طرف گامزن ہے اور کووڈ-19 کے کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، طبی ماہرین نے احساس ظاہر کیا ہے کہ اگر صورتحال قابو سے باہر ہوتی ہے تو لاک ڈاؤن پھر سے نافذ کرنا پڑے گا۔ ملک میں گزشتہ ایک ہفتے میں کووڈ-19 کے کیسوں میں 61,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ فورٹس ہاسپٹل کے شعبے امراض تنفس کے سربراہ ڈاکٹر وکاس موریہ نے بتایا، جب کبھی لاک ڈاؤن کھولا گیا کیسوں میں اضافہ ہوا۔ لاک ڈاؤن کا بنیادی طور پر استعمال وبا کی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پھیپھڑوں کے مشہور سرجن ڈاکٹر اروند کمار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ عوام خود سے لاک ڈاؤن اختیار کریں اور 4 سنہرے اصولوں پر عمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلا جائے، ہمیشہ ماسک پہنا جائے، دوری برقرار رکھی جائے اور مسلسل ہاتھ دھوئے جائیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ گشت کر رہا ہے جس کو جودھ پور کا جارج فلائیڈ واقعہ کہا جا رہا ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے جوان بنا ماسک کا استعمال کرے ادھر ادھر گھومنے والے ایک شخص کو زمین پر گرائے ہوئے ہیں اور اس کی گردن کو اپنے گھٹنوں سے دبا رہے ہیں۔ اس شخص، جس کی شناخت بطور مکیش کمار پرجاپتی ہوئی ہے، ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے بجائے اس نے پولیس سے جھگڑا شروع کر دیا۔ جودھ پور پولیس کے ایک افسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ ویڈیو جمعرات کے روز شہر میں اس وقت نکالا گیا جب یہ شخص بنا ماسک پہنے جا رہا تھا اور یہ پولیس کے ساتھ الجھ پڑا۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ مشرقی دہلی کے آنند وہار لوگوں کے اجتماع اور نظام الدین مرکز میں تبلیغی جماعت کے پروگرام کی تحقیقات دہلی پولیس روزانہ کی بنیادوں پر کر رہی ہے اور سی بی آئی چھان بین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وزارت داخلہ نے سماعتی عدالت میں چارج شیٹ پیش کرنے کے لیے دی گئی مہلت کے تحت تحقیقات کی تکمیل کی کوششوں کے سلسلے میں دہلی پولیس کے اقدامات پر تفصیلات بتائی۔ وزارت نے اعلیٰ عدالت سے کہا کہ دہلی کے بعض علاقوں میں غلط معلومات پھیلنے اور فیک میڈیا کی رپورٹ کی وجہ سے آنند وہار بس ٹرمینل اور غازی پور سرحد پر 28 مارچ کو ہزاروں مزدور جمع ہوئے تھے۔ 4 سے 5 مہینے کی حاملہ سفورہ زرگر کو ضمانت پر رہا کرنے سے انکار کرتے ہوئے دہلی کے ایڈیشنل سیشن جج دھرمیندر رانا نے حیرت انگیز تبصرے میں کہا ہے کہ جب تم نے چنگاری سے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب ہوا پر الزام نہیں دھر سکتے کہ وہ انہیں اڑا کر لے گئی اور آگ لگ گئی۔ یاد رہے کہ 27 سالہ سفورہ زرگر جو جامعہ کی طالبہ ہے، ان کو دہلی پولیس نے 27 مارچ کو گرفتار کیا تھا۔ بعد میں ان پر یو اے پی اے جیسا سنگین قانون عائد کر دیا گیا۔ جج رانا نے طویل بحث کے دوران وسیع تر سازش کی دہلی پولیس دلیل کی بھی تائید کی۔ انہوں نے سفورہ کی ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کیس کی جانچ کے دوران ایک وسیع تر سازش نظر آ رہی ہے، اس لیے اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے علیحدہ ایف آئی آر درج کر کے دوسری جانچ کرنا نہ صرف باجواز ہے بلکہ پوری طرح سے قانونی بھی ہے۔ پی ڈی پی صدر و سابق چیف منسٹر جموں کشمیر محبوبہ مفتی کی دختر التجا مفتی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں نئے نسلی امتیازی نظام میں مسلمانوں کو ولن بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے ہندوستان میں جان بوجھ کر کورونا وائرس پھیلانے سے لے کر ایک ہاتھی کو بے دردی سے مارنے تک مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، نئے ہندوستان میں مسلمان خوف کے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ جان بوجھ کر کورونا وائرس پھیلانے سے لے کر ہاتھی کو بے دردی سے مارنے تک قوم کو جو بھی مسئلہ درپیش ہے، مسلمانوں کو اس کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس نئے نسلی امتیازی نظام میں مسلمانوں کو ولن سمجھا جاتا ہے۔ 24 مارچ سے لاک ڈاؤن کے بعد اب تک مہاجر مزدوروں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ مسئلہ کسی بھی صورت حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ چنانچہ اب سپریم کورٹ نے حکومت ہند کو 15 دن کا مزید وقت دیا ہے۔ مہاجر مزدوروں کے معاملے میں مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے کہا ہے کہ ہم مہاجرین کو گھر پہنچانے کے لیے 15 دن کا وقت دے سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ سبھی مہاجرین کے صوبائی اور ضلعی رجسٹریشن کی ضرورت ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नए नारे को खारिज करते हुए कांग्रेस के कौमी तर्जुमान और रुकने पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने कहा है कि फसादात कराने वाली फिक्र से मुल्क खुद मुख्तार नहीं बन सकता। जिन यूनिवर्सिटियों में इनोवेशन होनी चाहिए, नई रिसर्च होनी चाहिए, वहां आरएसएस और एबीवीपी के जरिए फसादात कराए जा रहे हैं। अमेरिका, जापान, चीन, जर्मन, यूके वगैरह में देखिए कि इनोवेशन पर जीडीपी का कितना फीसद खर्च होता है और हमारे यहाँ कितना। हम रिसर्च पर जीडीपी का 0.7 खर्च कर रहे हैं, जबकि दूसरे ममालिक 3% से 5% खर्च करते हैं। फिर कह रहे हैं कि हम खुद मुख्तार बनेंगे। तो क्या ये नारा लगाने से होगा? उत्तर प्रदेश रियासत के महकमा बुनियादी तालीम में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 स्कूलों, वो भी मुख्तलिफ अजला के, जिसमें एक ही खातून कॉन्ट्रैक्ट टीचर तनख्वाह उठा रही है और किसी को इसकी 13 महीने तक भनक नहीं लगी। ये भी तब जब सब कुछ ऑनलाइन किए जाने और असातिज़ा के लिए प्रेरणा ऐप पर हाजिरी दर्ज कराने के लुज़ूम का दावा हुकूमत करती है। जब महकमे को इस घोटाला और लापरवाही का इल्म हुआ तब तक इसे तकरीबन 1 करोड़ का चूना लग चुका था। बहरहाल जब मामले का इंकशाफ हुआ तो इस नटवरलाल टीचर की तनख्वाह रोक दी गई और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू करा दी गई। इसे नोटिस भी भेजा गया है, मगर इसका जवाब दिए बगैर वो रूपोश हो गई। ताहम इस पूरे मामले में महकमे के कुछ अफसरान भी मशकूक हो गए हैं, जिन पर तहकीकात के मुकम्मल होने तक रोक लगाई जा सकती है। इस घोटाले की मास्टरमाइंड अनामिका शुक्ला कस्तूरबा गांधी रिहायशी गर्ल्स स्कूल में साइंस की टीचर है, जो बैक वक्त 25 अजला के स्कूलों से तनख्वाह भी उठा रही है। कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा है और इन्हें कर्नाटक से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मकुल वासिन ने जुम्मे के रोज बताया कि इनके नाम को पार्टी सदर सोनिया गांधी ने मंजूर कर लिया है। इन्हें पार्टी ने कर्नाटक से राज्यसभा की 2 साल मुद्दत के लिए नामजद किया है। बीजेपी लीडर और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने पानीपत के एक मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह को पहले थप्पड़ मारा, फिर चप्पल से जदोकोब किया। मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब सोनाली फोगाट सफाई दे रही है कि सेक्रेटरी ने इन्हें बुरा भला कहा, जिससे वो आपा खो बैठी और इसकी पिटाई कर दी। सेक्रेटरी ने इस इल्जाम को बेबुनियाद और झूठ बताया। सेक्रेटरी ने सोनाली फोगाट के खिलाफ मारपीट और सरकारी काम में रुकावट डालने की शिकायत की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने 49वीं सालगिरह पर सरकारी रिहायशगाह पर शजरकारी की और इसके बाद टीम 11 के साथ कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जायजा मीटिंग में मसरूफ हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। दीगर आला सियासी लीडरान ने भी इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। केरला के मल्लापुरम में बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट मेनका गांधी पर इनके इश्तियाल अंगेज बयान के हवाले से केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की दफा 153 के तहत मेनका गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो मजहब, जात, मुकाम पैदाइश, रिहाइश, जबान वगैरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ तबकात के दरमियान नफरत फैलाने से मुतालिक है। केरला की हाथी की मौत पर मेनका गांधी ने कहा था कि केरला का मल्लापुरम ऐसे वाक़यात के लिए मशहूर है। यह मुल्क की सबसे पुरतशद्दुद रियासत है। यहाँ लोग सड़कों पर जहर फेंक देते हैं, जिससे 300 से 400 परिंदे और कुत्ते एक साथ मर जाएं। यह हाथी की मौत पर मेनका गांधी की जानिब से फिरक़ेवाराना रंग देने की कोशिश की गई। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस की समाअत करने वाली सीबीआई की खुसूसी अदालत ने एक मुलजिम का बयान रिकॉर्ड किया। सीबीआई अदालत ने इससे पहले 5 मुलजिमीन बशमुल साबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रामविलास वेदांती को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 313 के तहत बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया था, ताकि वो इनके खिलाफ इस्तिग़ासा के सबूतों पर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। ताहम खुसूसी जज SK यादव वक्त की खिल्लत के बाद सिर्फ एक मुलजिम गांधी यादव का बयान रिकॉर्ड कर सके। जज ने 4 दूसरे मुलजिमीन को हफ्ते को दोबारा तलब किया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार JNU के तालिब इल्म शर्जील इमाम किसी राहत के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ मुसलसिल इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि इनकी तकारीर फ़िरक़ेवाराना नवियत की थी, जिसके ज़रिए फ़िरक़ेवाराना कशीदगी पैदा हुई और मुख्तलिफ मजहबी ग्रुपों के दरमियान नफरत को हवा दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक हलफनामा दाखिल किया और शर्जील इमाम की दरख्वास्त की मुखालिफत की, जिन्होंने एक निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हज 2020 के बारे में वाज़ेह ऐलान न किए जाने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज को जमाशुदा 100% रकम वापस करने की पेशकश की है, लेकिन इसके साथ ही मुतालबा किया जा रहा है कि 5 महीने रकम रखने के इवज़ इन्हें मुआवजा दिया जाए। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद खान ने एक इलामिया जारी करते हुए मुतला किया कि सऊदी अरब ने 13 मार्च को मुतला किया था कि इस साल हज के सिलसिले में फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया गया है और आरिज़ी तौर पर हज 2020 को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद गुज़िश्ता 3-3.5 महीने में हुकूमत सऊदी अरब ने कोई राब्ता नहीं किया। इस पेश नज़र हज कमेटी ने इन आज़मीन हज की जमा रकम बिला कटौती
वापस करने का फैसला किया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और इसकी अहलिया महजबीन कोरोना वायरस के टेस्ट में मुस्बित पाए गए हैं। हुकूमत के आला जरिए ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि दाऊद जोड़े को कराची के आर्मी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। जुमे को मंजर-ए-आम पर आई रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के पास पर्सनल स्टाफ और गार्ड्स को भी क्वारंटाइन किया गया है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में जबरदस्त इजाफा हो गया है। वजारत सेहत ने जुमे को ऐलान किया कि शाही मुमलिकत में कोरोना वायरस के 2591 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह मुल्क भर में इस हलाकत खैज वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 95,748 हो गई है, जबकि 642 अफराद इस वबाई मर्ज का शिकार होकर फौत हो गए। रियाज के बाद सऊदी अरब में कोरोना वायरस से शहर जिद्दा शदीद मुतासिर हुआ है। जिद्दा में हुकाम ने कई एहतियाती इक़दाम किए हैं, जिसके तहत शाम 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अलावाजी हुकाम ने 6 जून से 20 जून तक मसाजिद में तमाम इबादतों को मनसूख कर दिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 8 जून से लॉकडाउन में रियायतों के ऐलान के बाद तेलंगाना हुकूमत ने भी लॉकडाउन की रियायतों और 8 जून से शुरू होने वाली खिदमात के बारे में रहनुमाना खतूत जारी कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने GOMS 75 के जरिए 8 जून से शुरू होने वाली सहूलतों और मजीद तहदीदात वाली सरगर्मियों की निशानदही की है। कंटेनमेंट जोन के इलाकों में तहदीदात में कोई नरमी नहीं रहेगी, जबकि गैर कंटेनमेंट इलाकों में मरहलेवार तौर पर रियायतों का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के मुताबिक रियासत में स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इदारे, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स पर बदस्तूर पाबंदी बरकरार रहेगी। समाजी, सियासी, खेलकूद, तफरीह, तालीमी, तहजीबी और मजहबी तकारीब के इनेकाद और बड़े पैमाने पर अवाम के जमा होने पर पाबंदी जारी रहेगी। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के मुताबिक 8 जून से जिन सरगर्मियों के लिए रियायत रहेगी, इनमें इबादतगाहें अवाम के लिए खोल दी जाएंगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के आगाज की इजाज़त रहेगी। शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त दी गई है। रियासत भर में रात 9 बजे तक सुबह 6 बजे अवाम की नकल व हरकत और तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी, जिसे नाइट कर्फ्यू का नाम दिया गया है। हॉस्पिटल्स और फार्मेसी को रात 8:30 बजे के बाद भी खुला रखने की इजाज़त रहेगी। शहर हैदराबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और हेल्थ वर्कर्स में कोरोना के केसों में इजाफे ने एक तरफ हुकूमत तो दूसरी तरफ सरकारी डॉक्टर्स में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में तकरीबन 40 डॉक्टर्स में कोरोना पॉजिटिव अलामत पाई गई, जबकि लैब टेक्नीशियंस और दीगर स्टाफ भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर्स में कोरोना फैलाव के बाद सरकारी दवाखानों में सहूलतों की हकीकत मंजर-ए-आम पर आने लगी है। जूनियर डॉक्टर्स ने हुकूमत से PPE किट्स और दीगर सहूलतों की फराहमी में कोताही का इल्ज़ाम आयद किया। गांधी हॉस्पिटल, जो कि कोविड-19 मरीजों के इलाज का अहम मरकज है, वहां डॉक्टर्स में कोरोना का पाया जाना काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन निम्स, पेटला बुरुज, मैटरनिटी हॉस्पिटल और चेस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स में कोरोना एहतियाती तदाबीर की कमी का नतीजा है। बताया जाता है कि हुकूमत ने PPE किट्स, मास्क और दीगर एहतियाती अशिया की सरबराही का दावा तो किया, लेकिन दरकार तादाद में सरबराही अमल में नहीं आई है, जिसके नतीजे में डॉक्टर्स कोरोना से बच नहीं सके। तेलंगाना में जुम्मा को कोरोना वायरस के 143 नए मुस्बित केसेस सामने आए हैं, जबकि 8 अमवात रिकॉर्ड की गई। इस तरह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मरीजों के मरने की सबसे ज्यादा तादाद है। पीर से रेस्टोरेंट्स और मजहबी मकामात की कुशादगी भी अमल में लाई जा रही है। इन हालात में मजीद एहतियाती तदाबीर की इख्तियारी जरूरी है, वरना केसेस में कई गुना इजाफा का खदशा है। आज जो 143 मुतासिर हुए हैं, इनमें से ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 116 शामिल हैं। बताया जाता है कि कोरोना के मुतासरीन में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 2 कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कत्ल की 5 सनसनीखेज वारदातें पेश आई। पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा जफर रोड पर एक नौजवान का इसके सौतेले भाई और इसके साथियों ने सरेआम फिल्मी अंदाज में कत्ल कर दिया। इसी अंदाज में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में रात के कर्फ्यू के दौरान दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई और गुज़िश्ता रात गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में राहुल नामी शख्स का भी शमशान घाट में कत्ल कर दिया गया। इन तमाम वारदातों के बाद पुलिस के मुस्तैदी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं, जबकि शहर हैदराबाद की पुलिस को मुल्क में नंबर 1 पुलिस का दर्जा दिया गया है।